Okay, now you have used voltmeter previously. Mute karo, Snyder, mute kar. This was the resistance, this is circuit. Now how we use a voltmeter? Now for voltmeter, we attach it across the resistance. I hope everyone knows that voltmeter यहाँ पे attach करते हैं, ठीक है? Now when we attach a voltmeter over here, it reads the potential difference across this resistance. Okay. Now, voltmeter is an instrument which is attached across the resistance. It measures the potential difference across this resistance. Now, the trouble with voltmeter is it is one of the easiest device to use, and it is one of the most used device. मतलब सब जगह पे वोल्टमीटर ही यूज होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. इवन तुम्हारे घर में जो टीवी रिपेयर करने आएगा या कंप्यूटर रिपेयर करने आएगा वो भी यही मशीन लेके आएगा, वोल्टमीटर ही लेके आएगा टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. बट द ट्रबल इज दैट इट takes some amount of current. It takes up some amount of current. Because it takes up some small value of current, negligible value of current it takes, because उसको रीडिंग करना है, तो उसको वो करंट का जरूरत पड़ने वाला है. तो वो मेन सर्किट से, because it takes up certain amount of current, the measurement that it does is not an accurate measurement of potential difference. Because अगर ये करंट इधर चला गया, then a part of that current will flow here, another part of current will flow here. तो जो potential difference read कर रहा है ना, that is not accurate. So it is not an ideal component to measure the potential difference. So the trouble is it takes up certain current. So what can be an ideal component product to measure the potential difference? That ideal product should be having infinite resistance. Why the word infinite resistance? So that no current flows over here. There should be no current flowing over here. Now this is achieved by using a potentiometer. So we are learning about potentiometer now. Just a second. Now, this is how the potentiometer will look like. It's a rheostat. Connected to a wire. This is an ammeter which measures the current. Okay. Now this wire, like in meter bridge, if you have learnt about meter bridge, similar like meter bridge, this wire will be having, but this is not a 1 meter wire. This is a wire of few meters. This is not 1 meter wire. This is a wire few meters. Few meters मतलब यहाँ पे एक 1 meter का wire नहीं है. ऐसे 1 meter के there are many number of rounds. ठीक है? 1 round, 2 round, 3 round, 4 round. Minimum 4 meter का wire है ये. And ये तुम्हें practicals में सब colleges में compulsory रहेगा. Potentiometer रहता ही है. Okay. So this is a box, wooden box. On that wooden box there will be 1 meter wire ka many number of rounds. Besides this wooden box, there will be also a ruler. यहाँ पे एक ruler attached रहेगा. That ruler will be used to measure the length. Okay, I'll just show it to you. How does the potentiometer looks like? So you can see this is a wooden box. On that wooden box there is many number of rounds of wire. Okay, so this is a potentiometer box. The material used is copper. This is a copper strip, and the wire used is Constantan or manganese. I hope you can see that. Dikh raha hai? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. You can see there is a 1 meter ruler over there. So for example, अगर तुम्हारा जॉकी तुमने इधर बीच में किधर तो रखा है, तो जॉकी जिधर भी रखा है उसका रूलर मेजरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, और 3rd मीटर के ऊपर तुमने 20 पे रखा है, यानी 1 मीटर 2 मीटर प्लस 20 यानी 220 मीटर हो जाए, सॉरी 220 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट ये पूरा सर्किट है उसका. वुडन बॉक्स,
हैविंग वायर, रूलर, चेक करो उसका एक एंड तुम्हारा की को कनेक्टेड है, रियोस्टेट को कनेक्टेड है और बैटरी को कनेक्टेड है. सेकेंड एंड इज कनेक्टेड टू एमीटर एंड टू द बैटरी. ठीक है, ये सर्किट समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. So this is this is few meters of wire over here. Okay, now in this circuit it's quite easy to understand potentiometer concept. तो अगर पोटेंशियोमीटर अंडरस्टैंड करना है तो ये सर्किट अच्छी तरह से यूज करना है. ठीक है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम में ये वाला सर्किट यूज किया, तो मैं ये सर्किट बनाने वाला हूं, पर अभी समझाने के लिए मुझे ये सर्किट से समझाना ज्यादा इजी है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. तो अभी हम लोग इसके ऊपर ही आएंगे, पहले अंडरस्टैंड इससे करेंगे, फिर वापस में ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा. ठीक है, नाउ सो व्हाई वी डोंट यूज अ वोल्ट मीटर. अच्छा, where we are using voltmeter used everywhere by the way. ठीक है, but the only thing is where we need an actual perfect accurate measurement, accurate potential difference का measurement चाहिए, उधर हम लोग वोल्ट मीटर यूज नहीं करते, उधर पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं. इसका यूज कम है, पर जिधर एक्यूरेसी चाहिए उधर वो यूज होता है. ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सोर्स EMF. This provides the source EMF over here. Okay, this always has an internal resistance also, small r. ठीक है, now let's find out the current flowing. The direction of the current is from A to B. So what is the current flowing? If you remember EMF formula, what is I is equal to E upon R plus R. ठीक है, that is EMF upon R plus R. So what is the potential difference across this wire AB? That is, I'll call it as V. This potential difference is V. Potential difference across AB. According to Ohm's law, potential difference का formula क्या आता है? What is Ohm's law के हिसाब से potential difference का formula क्या है? Can you tell me please? IR. Very nice. तो formula is I into R. कौन सा R आएगा? करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में. रेजिस्टेंस कौन सा वाला आएगा? रेजिस्टेंस ऑफ AB. इज दैट क्लियर? AB का रेजिस्टेंस जिसको अपन ने R लिया है. ठीक है, नाउ उसका रेजिस्टेंस R है. ठीक है, सो व्हाट इज I इज इक्वल टू E अपॉन R, यानी ये वाला, प्लस स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस. VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या रहेगा? I इंटू R. बट I खुद क्या है? E अपॉन R प्लस R. मैंने I के बदले क्या सब्स्टिट्यूट किया है? E अपॉन R प्लस R. कैपिटल R जिधर था उधर ही रखा है. So this is VAB. Now I am going to divide both sides by L, the length of the wire. E into R upon R plus R into L. Okay. Now what I notice over here is this EMF of a cell. जब मैंने एक बार, I am not changing the source EMF. This is called as a source EMF. I am not changing the source EMF. I am not changing the resistance of a wire, क्योंकि वायर एक बार अटैच हो गया, मैं उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकता. जब मैं EMF चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहा हूं, और मैं पूरे एक्सपेरिमेंट में लेंथ ऑफ द वायर जो बॉक्स के ऊपर फिक्स है, वो लेंथ भी चेंज नहीं कर रहा हूं. ठीक है, सो आई एम कीपिंग. ओके, सो इफ आई कीप EMF ऑफ अ वायर कांस्टेंट, if I keep EMF of a wire constant, resistance constant, small r constant, length constant, तो ये पूरा term constant हो गया. If this part is constant, so what I notice is that the potential difference per unit length also remains constant. So पूरे wire के across potential drop, potential difference का मतलब होता है potential drop per unit length is constant. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट. दिस पोटेंशियल ड्रॉप
per unit length is called as potential gradient. ठीक है, potential gradient. Okay, do you remember 11th standard में I have mentioned gradient word का मतलब क्या होता है? Anyone remembers? अच्छा, rate word का मतलब क्या होता है? Divide by time. Divide by time. तो gradient word का मतलब होता है divide by length. ठीक है, तो ये वर्ड अच्छी तरह से याद रखें. So potential gradient. So what is potential gradient? Potential difference across the wire per unit length. Now why this concept is important to understand? इसको हमने नेम किया है K. ठीक है, which is a constant. So once your EMF, ये source EMF क्या कर रहा है पता है? ये जो source EMF है ना, ये potential difference produce कर रहा है across AB. But that potential difference across AB has a certain drop. Has a certain drop, यानी for example, ये तुम्हारा assume करो ये 4 मीटर का वायर है, ठीक है, और मैंने 4 वोल्ट EMF अप्लाई किया है, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर, can you tell me how much drop will take place of potential difference here? Potential difference per unit length कितना रहेगा? 4 वोल्ट, मैंने 4 वोल्ट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वायर का लेंथ 4 मीटर है. So what is the potential drop per unit length? 1 volt. 1. Okay, so potential drop per unit length, if this is 4 volt and this is 4 meter wire, so potential drop per unit length becomes 1 volt per meter. ठीक है, यानी पर मीटर मैंने अगर 1 मीटर देखा तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 1 मीटर का, और मैंने अगर 2 मीटर लिया तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 1 + 1 यानी 2 मीटर. ठीक है, अगर मैंने 3 मीटर लिया तो 1 मीटर + 1 मीटर + 1 मीटर, 1 वोल्ट + 1 वोल्ट + 1 वोल्ट यानी 3 मीटर का ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट्स का ड्रॉप हो गया. सो पर मीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नाउ दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज 8 वोल्ट. पोटेंशियल ड्रॉप मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 वोल्ट एंड 4 मीटर का ही वायर लेते हैं. नॉर्मली प्रैक्टिकल में भी तुमको 4 मीटर ही आने वाला है, ठीक है, कोई कोई जगह पे अगर 6 मीटर यूज किया तो, वरना 4 मीटर ही होता है. ओके, तो नंबर ऑफ राउंड्स देख देगा, 1 मीटर 2 3 4 ऐसे काउंट होता है. ठीक है, ओके, सो टोटल 8 वोल्ट है. तो कैन यू टेल मी पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा पर यूनिट लेंथ का? 2 volt per 2 वोल्ट पर मीटर. ठीक है, तो 2 वोल्ट्स पर मीटर आ रहा है. तो अगर मैंने 1 मीटर पे पॉइंट लिया C, सो ये पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? सी, डू रिमेंबर दिस इज एट हायर पोटेंशियल, तो अपन ये हायर पोटेंशियल से ड्रॉप मेजर कर रहे हैं. हायर पोटेंशियल से ड्रॉप है, मैं इधर से नहीं गिन रहा, मैं इधर से गिन रहा हूं. ठीक है, सो हाउ मच विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस 1 मीटर? टेल मी. 2 volt. कितना हो गया पोटेंशियल ड्रॉप? 2 वोल्ट्स का, यानी यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट. ठीक है, if I am taking another point D over here, okay, that is at 2 meter, तो 1 मीटर पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ. ठीक है, ये 2 क्या है? ये 2 क्या था? ये 2 आया कैसे? Potential gradient. Potential difference per unit यस length. प्लीज, कैसे आया 2? पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया ना. ठीक है, यानी K आया. ठीक है, K का वैल्यू 2 है, ये K का वैल्यू 2 है और 1 मीटर का वैल्यू था, तो इनटू 1 किया. इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज 2 मीटर्स, सो पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप इज 2 वोल्ट. तो 2 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 4 volts. 4 4 वोल्ट. कैसे 4 वोल्ट आया? 2 into तुमने 2. पोटेंशियल को 2 मीटर से मल्टीप्लाई किया,
यानी इधर से इधर तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, k इंटू 2. समझो दिस इज अनदर वेरिएबल पॉइंट p which is at x meter. This is at x meter. Now can you tell me यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? K into X. तुम्हारा पोटेंशियल into ग्रेडियंट 2 वोल्ट पर मीटर है. हाँ, क्या आएगा, k इंटू X. x. तो इधर से इधर तक का पोटेंशियल डिफरेंस v will become k into x. Now instead of x let us take it L. तो क्या आएगा, v is equal to k into L. So potential drop across AP, potential drop across AP will become k into L. Okay, A से लेके P तक का potential drop will be k into L, where k is called as a potential gradient, L is called a point जहां तक का अपने को potential difference find out करना है. Okay, this is a principle of potentiometer, that the potential difference is directly proportional to the length of the wire. This potential difference is directly proportional to the length of the wire. We are going to use this principle to find the potential difference of a set. Okay, so हम लोग और इसके कॉन्सेप्ट के डीप में जाने वाले हैं. पहले सिर्फ इधर तक क्या समझ में आ गया वो मुझे बता दो, ठीक है? R plus R. I equal to E upon R plus R into R. दोनों को लेंथ से डिवाइड किया, लेंथ ऑफ द वायर से, तो VAB upon L will become E R upon R plus R. This VAB upon L is called as K, which is a constant. Why this is constant? Because all these terms are constant. ठीक है? This is called as potential gradient. Okay? This is potential drop per unit length. So if I have a 1 meter length, the potential gradient is K. If I have a 1 meter length, then the potential drop per unit length, एक यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप k का होता है, k का होता है. This is called as potential drop per unit length. Okay, if I am taking 1 meter wire, तो potential drop is 1. If I am taking 2 meters wire, potential drop is 2. Potential drop 2k हो जाएगा. If I am taking L meter का wire, then the potential drop will become k into L. Okay, so using this relation, what do I come to know? That the potential drop across any point is k into the length from A till that point. Okay, so what I come to know is that the potential drop is directly proportional to length. This is the principle of a potentiometer. Okay, now come to your textbook, please. Okay, a voltmeter is a device which is used for measuring potential difference between 2 points in a circuit. वो मैंने already बता दिया voltmeter का. An ideal voltmeter which does not change the potential difference to be measured should have infinite resistance. अभी मैंने थोड़ी देर पहले explain किया था, voltmeter में problem क्या आता है? There is a small error. What is that small error? कि तुम्हारा वो current, voltmeter current खींचता है, यानी तुम्हारे मेन रेजिस्टेंस के अक्रॉस सारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है. देयर इज सम करंट एक्सट्रैक्टेड बाय द वोल्टमीटर. ठीक है, सो इट शुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट. प्रैक्टिकली वोल्टमीटर कैन नॉट बी डिजाइन्ड टू हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. Potentiometer is one such device which does not draw any current from the circuit. It acts as an ideal voltmeter. It is used for accurate measurement of potential difference. अभी तक तो तुमको समझ में नहीं आया रहेगा कि सर इसको मैंने potential difference measure करने के लिए तो यूज किया ही नहीं है. तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में. ठीक है, पहले सिर्फ ये potentiometer कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो. नेक्स्ट डेरिवेशन पे आ जाओ. पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. Come to the last line of that derivation, that is called as the principle. Thus, that part is called as principle. The potential difference between 2 points on the wire is directly proportional. Potential difference between 2 points of the wire, these are the 2 points of the wire, is directly proportional
to the length of the wire. You can see that it is directly proportional to the length of the wire between them, provided the wire is of uniform cross section. This wire is considered to be of uniform cross section. यानी इसका area, cross sectional area same रहेगा. The current through the wire is the same and the temperature of the wire remains constant. The current is same and the temperature is constant. Uses of potentiometer are discussed below. Okay, now we'll come to that uses afterwards. पहले इतना concept समझ में आ गया. Now I'll explain पोटेंशियोमीटर का टेक्स्ट बुक वाइज डायग्राम कैसे बनाएगा. सी ये डायग्राम समझने के लिए बहुत इजी है, ठीक है, बट टेक्सचुअल डायग्राम थोड़ा अलग है. कैन एनीवन टेल मी ये ऐसा डायग्राम क्यों बनाया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का? A is connected to the higher potential, B is connected to the lower potential. ये ऐसा क्यों ड्रॉ किया पता है तुमको? अभी मैंने फोटोग्राफ में पोटेंशियोमीटर बताया था, ठीक है. वो पोटेंशियोमीटर बॉक्स कैसे था? तुम नोटिस करो, ये पोटेंशियोमीटर बॉक्स के ऊपर वायर चेक करो कैसे अटैच किया हुआ है. ये 4 राउंड्स है ना, 1 2 3 4. तो ये जो राउंड्स दिख रहे हैं ना बॉक्स के ऊपर, वो राउंड्स तुमको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है. दैट्स द रीजन ये डायग्राम ऐसा है. एक्चुअल में ये डायग्राम से पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट समझना डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिकल में तुम ऐसा करते हो, इसके लिए उन्होंने वैसे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है. नाउ दिस इज A पॉइंट हायर पोटेंशियल, B पॉइंट लोअर पोटेंशियल को कनेक्टेड है. दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट P where we are finding the potential difference, VAP. What is that VAP? Potential difference across VAP is proportional to the length of the wire, ठीक है. नाउ अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं वो तो सीखा ही नहीं है. अभी तक सिर्फ बेसिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर समझा है. Once this part is clear, then you can understand what is the use of potentiometer. First use, to measure the EMF of a cell. जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, पर तुमको ये समझ में आएगा तो आगे का समझ में आएगा. Second use, to compare the EMF of cells. This is the second use of potentiometer. Third use, to measure the internal resistance of a cell. Now these are the 3 uses. Okay. First use जो है ना वो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फर्स्ट यूज समझेगा तो तुमको समझ में आएगा कि पोटेंशियोमीटर, हाउ एम आई यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल. इसके बाद ही एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा, इसलिए फर्स्ट यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Once again, what is potentiometer used for? To measure the potential difference across any 2 points, correct? That is the use of a potentiometer. जो वोल्ट मीटर के बदले ये यूज करेंगे, so that what we get the accurate measurement. Okay, so that itself is the first use. जो मैंने लिखा है ना वो वही यूज है, to measure the EMF of a cell. Now to measure it, मैं ये वाला डायग्राम यूज कर रहा हूं. वैसे भी ये पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो लोगों को कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ सोर्स ईएमएफ. ये सोर्स ईएमएफ का जॉब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने का. इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने का जॉब है, ठीक है. हम लोग इसका ईएमएफ मेजर नहीं कर रहे, पहला ये चीज क्लियर करो, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना यही कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स है. न्यूमेरिकल इसी के ऊपर डिपेंड है, पर यही कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है, ठीक है. दिस जॉब, इसका जॉब है टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, इसका ईएमएफ नहीं मेजर कर रहे. दिस इज अ सोर्स ईएमएफ. वी आर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अनदर सेल. चेक करो, दिस विल हैव इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी. अब तुमको क्लैरिटी आएगा.
अभी तक जो समझा था ना वो सिर्फ बेसिक सा पोटेंशियोमीटर था, वो पोटेंशियोमीटर का इंस्ट्रूमेंट समझ रहे थे। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आ रहा है कि हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, इसको यूज किधर कर रहे हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेन पार्ट आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ईएमएफ ऑफ अ सोर्स ईएमएफ। इसका जॉब है टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। तो ये पर यूनिट लेंथ there will be a certain drop of potential created. Can you tell me what is that per unit length drop called as? How much is that per unit length drop? K into L. Okay, very nice. Potential gradient. Per unit length drop. How much of per unit length drop is created over here? K. तो ये per unit length K का drop है. Again there is K का drop. Again K का drop. Again K का drop. Now we are coming to the main point. हम लोग इसका EMF find out कर रहे हैं. E1. इसका EMF या इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सब रहने दो, उसका ज्यादा ध्यान मत देना। दिस इज गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ जॉकी। नाउ यू ऑलरेडी लर्न दैट इन मीटर ब्रिज, तुमने ऑलरेडी मीटर ब्रिज में किया हुआ है, ठीक है। जॉकी का यूज क्या करते हैं अगर गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है तो? टेल मी, जॉकी का यूज क्या करेंगे? टू फाइंड द यस टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड द नल पॉइंट, राइट? नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर पे जीरो रीडिंग आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नल पॉइंट। सो आई एम गोइंग टू मूव दिस जॉकी फ्रॉम ए टू बी, नॉट फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्लाइड इट, आई एम गोइंग टू टच इट। आई होप यू रिमेंबर दैट। अगर अपन स्लाइड करते तो क्या होता है, ये वायर खराब हो जाता है, वो घिस जाता है। सो वी आर गोइंग टू टच ऑन दैट पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। सो एक पॉइंट पे आया तो गैल्वेनोमीटर इज शिफ्टेड ऑन दिस साइड। समझो एक इधर मैंने पॉइंट पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर एक साइड में मूव हो गया, फिर मैंने इधर टच किया तो गैल्वेनोमीटर दूसरे साइड में मूव हो गया। सो वापस थोड़ा इधर लेके आ गए, फिर इधर लेके आ गए, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो हम लोग एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऐसे टच करते करते नजदीक का एक पॉइंट पे आएंगे। एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पे देयर विल बी नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। Now that null deflection concept you already learned in meter bridge, so you already know that. So there is a null point form. Now what happens due to this null point? If null point का meaning है there is no current flowing over here. Okay. Now when will no current flows over here? When ये वायर इधर से इधर तक अटैच्ड है, यानी इस ब्रांच में ही पूरा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये पूरे ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ये जो सोर्स ईएमएफ है ना, जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो करंट इधर पास हो ही नहीं रहा है। एंड नाइदर दिस करंट इज पासिंग ऑन दिस साइड। इसका जो करंट है ना, इस बैटरी को, जो मैंने सेकेंड बैटरी जिसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इसका करंट भी इधर फ्लो नहीं हो रहा है, नाइदर इसका करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो इसका करंट इधर भी नहीं आ रहा है, इसका करंट इधर भी नहीं आ रहा है, मींस that is no current, zero current flows over here as well as zero current flows over. If there is zero current here, then there will be zero current over here. So there is no current flowing in these two branches, यानी पूरे branch में there is no current flowing. Why there is no current flowing? Because इसका जो potential है same potential इधर है, and इसका जो potential है same potential इधर है, यानी ये जो potential difference create हो रहा है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है। अगर यहां का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम है तो नाइदर द करंट विल कम ऑन दिस साइड और कम्स ऑन दिस साइड। अज्यूम दिस पोटेंशियल इज मोर एंड दिस इज लेस, तो क्या होएगा, इस मेन सोर्स ईएमएफ का जो करंट है ना आई, वो करंट का थोड़ा करंट इधर पास होएगा। And if that current flows over here, then the same current will come out of from here. जो current इधर आएगा वही तो current वापस रिटर्न आता है ना। I hope everyone knows the basic circuit diagram. Whatever current comes on this side will be coming from this side, ठीक है। यानी galvanometer will not show reading, यानी galvanometer इधर आ गया, ठीक है। Is that clear, everyone? Okay. Yes, sir. This potential is more and this potential is less. Assume this potential is more and this potential is less. तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहां से फ्लो होगा। अगर करंट इधर से फ्लो होगा तो सेम करंट हैज टू कम ऑन दिस साइड,
वो यही करंट इधर से रिटर्न आएगा, यानी द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑन दिस साइड, ठीक है, गैल्वेनोमीटर दूसरे साइड में डिफ्लेक्ट होएगा। नाउ इफ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हो गया? नो करंट फ्लोज हियर, मींस नो करंट फ्लोज हियर। वेयर इज दैट अचीव्ड? When no current will flow through here, when will that be achieved? When the null point. yes, please. Both When the the potential potential and difference Both the resistance potentials is are equal. both these potentials are Equal. equal. both these potentials are Equal. equal. यानी इसका जो potential difference है, इसका जो potential difference है, वो इसका potential difference क्या रहना चाहिए? AC. सेम रहना चाहिए। नोटिस करना, इसका जो इधर पॉजिटिव ए को कनेक्ट हो रहा है ना, इसका भी पॉजिटिव ए को ही कनेक्ट हो रहा है, तभी वो कॉन्सेप्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड ओवर हियर, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वल है, यानी E1 VAC से इक्वल है। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करते हैं। डू यू रिमेंबर द पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? That the potential drop is directly proportional, potential difference across any 2 points on the wire is directly proportional to its length. So we know that the EMF of a cell, जो मुझे measure करना है, जो मेरा first use है, EMF of a cell, what is that equal to the potential drop across AC? And as per the principle of potentiometer, that VAC is equal to what? KL1. What is that proportional to L या फिर is equal to KL? What is that potential drop equal to KL? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट C लिया है, तो VAC किससे इक्वल आएगा? अगर ये मेरा लेंथ L1 है, जहां पे ये जॉकी टच किया है, तो व्हाट इज E1 इज इक्वल टू KL1, यानी यूजिंग दिस फॉर्मूला I can find the EMF of a cell. Now you must have understood the use of a EMF. या फिर हम लोग पोटेंशियल वोल्ट मीटर नहीं यूज कर रहे, rather than using voltmeter we use a potentiometer. And why am I using potentiometer? So that I can find the EMF of a cell or I can find the potential difference. ठीक है, in short हम लोग EMF बोलो, EMF मतलब ही potential difference होता है। ठीक है, तो potential difference find out करते हैं। ठीक है, so this is the use, this is the first use। ठीक है, now let's find out कि वोल्टमीटर में क्या इशू था, वोल्टमीटर में क्या इशू आ रहा था, जो इधर सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, डू यू रिमेंबर वोल्टमीटर क्यों नहीं यूज करना था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद वोल्टमीटर? करंट लेता है। यस, करंट। तो जो मेजरमेंट ले रहा है ना वोल्टमीटर, वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ करंट इन दैट ब्रांच। तो तुम्हारा वोल्टमीटर इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, नाउ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ओवर हियर। चेक करो, हाउ इज दैट सॉल्व्ड? You yourself think, you are a science student, please think. null point आ जाएगा, करंट पास नहीं होता उधर से। जिसका EMF मेजर कर रहे हैं ना, जिसका EMF मेजर कर रहा है ना, उधर कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। Remember what was the concept here? Null point. I hope you are clear about this. Null point आया था। Null point मतलब no current in these. ठीक है, and if no current flows means it's an ideal device to measure the potential difference because it is having a infinite resistance. Infinite resistance का word का मतलब क्या होता है? मतलब करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, and that is achieved by this diagram, by this rule. ठीक है, so therefore infinite resistance produce हो गया, यानी this is an ideal device to measure the potential difference of a cell. Okay, तो तुमको इसका प्रॉब्लम क्या है? अभी इसके ड्रॉबैक्स भी है। The drawback about this instrument is you cannot easily use it. जैसे वोल्टमीटर एंड्स लो सीधा अटैच कर दो, you can use it as to measure the potential difference. इसका ड्रॉबैक है, इसको सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते, इसका नल पॉइंट ढूंढो। आफ्टर यू फाइंड नल पॉइंट, पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ, दैट बॉक्स यू हैव टू कैरी। ठीक है, सो इट्स नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, then you have to keep on measuring the null point. Okay, after you get a null point you have to do calculation, मतलब सीधा रीडिंग नहीं मिल रहा है तुमको। जैसे वोल्ट मीटर में तुमको सीधा रीडिंग मिल गया 5 वोल्ट,
वैसे नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नल पॉइंट मेजर करना पड़ेगा L1। वो L1 को उसके K, उसका K जो रहेगा ना वो फिक्स रहेगा, वो K जो है वो यहां से मिल रहा है, जो उस डिवाइस का फिक्स है, इस डिवाइस का K वैल्यू फिक्स है, सिर्फ मेरे को L1 ढूंढने का है, नल पॉइंट ढूंढना है, मेरे को सिर्फ L1 ढूंढना है। वो L1 को कैसे मल्टीप्लाई करो, विल गेट द EMF ऑफ अ सेल। बट इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई हैव टू, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। सेकेंड प्रॉब्लम, इट वी हैव टू कैलकुलेट इट, आफ्टर वी कैलकुलेट then we'll get the value of the EMF. So इसका यूज क्या है, it is a perfect accurate device है, but there are certain drawbacks of this, ठीक है, difficult to use, that is the biggest drawback with this device, ठीक है, कि हम लोग इसका EMF नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स इधर ही कंफ्यूज है, सर मैं इस बैटरी का EMF ढूंढ रहा हूं कि इसका EMF ढूंढ रहा हूं, मैं इसका EMF ढूंढ रहा हूं, इसका हम लोग ढूंढ ही नहीं रहे, समझा। इसका जॉब है टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड के। इसका जॉब वही है। तो ये एक बार मैंने इंस्ट्रूमेंट में बैटरी और ये सब अटैच कर दिया ना, इसका काम खत्म हो गया, ये सोर्स ई का काम खत्म हो गया, इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं सोर्स EMF। हम लोग इसका EMF ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू एवरीवन। Now before we start with the sum, अब मैं एक रूल्स बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर में ये रूल को अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, यही शॉर्टकट यूज करने का, तुमने जो डेरिवेशन में किया वही करने का, E अपॉन R प्लस आर एस, R प्लस आर एस, जो तुमने डेरिवेशन में किया वही कर रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एस। ये R यानी रेजिस्टेंस of wire, I'll better write it as AB. ये are internal resistance of the EMF, and sometimes there is one more resistance attached in series, इसके लिए ये आता है, तो न्यूमेरिकल में ये आ सकता है, there is one more resistance attached in series, इसके लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। I next VAB, what is VAB equal to I into R AB, ठीक है। ये AB वर्ड किसके लिए यूज किया है, द होल वायर, कंप्लीट वायर, जहां पे पूरा लेंथ आया। नेक्स्ट के का फॉर्मूला आता है VAB अपॉन L, ठीक है, दिस इज के इज VAB अपॉन L। लास्ट अगर मैं E1 फाइंड आउट कर रहा हूं, सो व्हाट इज E1 इक्वल टू KL1। अब समझ में आया ये क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि न्यूमेरिकल का ये कॉन्सेप्ट इसके बाद ही समझ में आएगा, जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। E1 इज इक्वल टू KL1, ठीक है। ओके, नाउ हाउ टू यूज दिस इन न्यूमेरिकल्स। आइदर तुमको इधर से इधर जाना है या फिर इधर से इधर जाना है, तुमको या तो तुमको न्यूमेरिकल में ऐसे ट्रैवल करना है या तो ऐसे ट्रैवल करना है। मतलब E1 दिया है तो K मिलेगा, तो VAB मिलेगा, तो I मिलेगा, या फिर I दिया है तो VAB मिलेगा, तो K मिलेगा, तो E1 मिलेगा। तो सम इधर तक कभी कभी पहुंचता ही नहीं, तुम्हारा सम सिर्फ इधर से इधर तक ही होता है, या तो यहां से इधर तक आना है या तो इधर से इधर तक आना है। Is that part clear? अब एक बार ये डायरेक्शन समझ में आ गया, दिस इज द ट्रिक, एक बार ये डायरेक्शन समझ में आ गया ना, सॉल्विंग न्यूमेरिकल इज द पीस ऑफ केक, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल 14. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter, complete length of wire L is 1.5 meter, and resistance of 10 ohm, and resistance of that wire is known, 10 ohm. It is connected in series with a cell. Now that potentiometer wire is connected in series with a cell, मतलब मेरा source EMF हो गया। That ये दिमाग में फिट करो, तुम E ढूंढ रहे हो कि E1 है, मतलब तुम्हारा AB wire is connected in series, connected in series यानी E हो गया, source EMF हो गया, E1 नहीं हुआ। E1 कभी सम के एकदम एंड में आएगा पिक्चर में, स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा, तो ये E रहा। So EMF of a wire is known. What is that EMF of a wire known as? 4 volt. And an internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter. यानी तुमको सम इधर से इधर आने का है। मैंने कहा ना ये ट्रिक यूज करो, जो डेरिवेशन में किया वही है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में ये आता है।
ओके तो तुमको यहां से इधर तक जाना, इधर तक ये तुम्हारा सम, सिर्फ यहां तक सॉल्व करना है। ओके सो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? I, व्हाट इज I इक्वल टू E अपॉन R plus R. RAB प्लस स्मॉल r। E का वैल्यू 4, कैपिटल R इज 10, स्मॉल r इज 5, यानी 4 अपॉन 50 एम्पियर्स। इसको ऐसे ही लेना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। I हो गया, RS इस सम में नहीं था। नेक्स्ट VAB, व्हाट इज VAB? I इंटू RAB। I का वैल्यू 4 अपॉन 50, RAB इज 10। I का वैल्यू 4 अपॉन 15, RAB इज 10। 5 3 जा 5 2 जा, यानी 8 अपॉन 3। थर्ड स्टेप, VAB मिल गया, मेरे को K चाहिए। सो व्हाट इज K इक्वल टू VAB अपॉन L। मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए, तो VAB का वैल्यू 8/3, L लेंथ ऑफ वायर 1.5 मीटर है, पर मैं 150 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो दैट विल बिकम 8 अपॉन 3। 150 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल विल बिकम 1 अपॉन 150। ठीक है, कैंसिल दैट, 2 से डिवाइड किया तो 4 और 75, दैट इज 4 अपॉन 150, कितना था? 4 अपॉन समथिंग 15 22 वोल्ट पर सेंटीमीटर। डेसिमल्स में बाद में तुम कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। A voltmeter has a resistance of 100 ohm. Sorry, 20 हो चुका था ना? हाँ, 17 sum. Yes, 17 question. A potential drop per unit length along a wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. Can you tell me potential drop 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter है क्या? K. अगर कंफ्यूज रहा ना तो ये यूनिट चेक करो, वोल्ट पर मीटर है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी के लेके रखा है। ठीक है, फर्दर, इफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल बैलेंसेस अ लेंथ ऑफ 216 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ देके रखा है। बैलेंसिंग लेंथ यानी नल पॉइंट वाला लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब होता है नल पॉइंट वाला लेंथ। L1 कितना है? 216 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मीटर में है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.16 मीटर। दिस इज अ बैलेंसिंग लेंथ। फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब हम लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल यानी E1 ढूंढ रहे हैं। तो मेरे को K मालूम है, अब मेरे को E1 चाहिए, यानी इधर से इधर आना है, ये वाला स्टेप आएगा। सो बाय रूल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज E1 इक्वल टू K into L. L1। K का वैल्यू 5 into 10 raised to minus 3, L1 का वैल्यू 2.16, 5 6 are 30, 8 10। आंसर इज 10.2 into 10 raised to minus 3, या फिर 0.108 वोल्ट्स। ये ईएमएफ है, तो दिस विल बी इन वोल्ट्स। ठीक है,